السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم جس مدعے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مسلم معاشرے میں مساجد کا کردار، یعنی مسجدوں کا کردار۔ آج کا مضمون ہو سکتا ہے اتنا انٹرسٹنگ نہ ہو اور اتنا دلچسپ نہ ہو، لیکن 5-10 منٹ نکال کر یہ امت کے بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو ذرا سن لیجئے۔ مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہے اور مسجدوں میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں نمازوں کے علاوہ، یعنی 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ کیا کیا کام کیے جاتے تھے اور مسجد کا مقام کیا تھا، آج اس کے اوپر کسی کی توجہ نہیں ہے۔ اسلام میں مسجد کو عبادت، تعلیم و تربیت، ثقافت، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے مرکزی مقام حاصل رہا ہے، بلکہ مسلمانوں کی تمام سرگرمیوں کا مرکز ہی مسجدیں تھی۔ اسلام کی تعلیم کا آغاز ہی مسجد سے ہوا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ کے باہر سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر فرمائی، اس کے بعد دوسری مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اور دنیاوی تعلیم کی شروعات کی۔ اسی مسجد میں علم و عرفان، تہذیب و تمدن، اتحاد و یگانگت، اجتماعیت، مساوات اور اخوت کے جذبات پروان چڑھے اور معاشرہ روز بروز منور ہوتا چلا گیا۔ مسلمان جب مسجد میں جاتے ہیں تو اسلام کے رشتے اخوت سے جڑے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ مسجد میں ذات پات، رنگ و نسل، امیر و غریب میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ بقول شاعر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بند نواز۔ جیسے ایک دوسرے کو سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، اور اگر کوئی حاجت مند ہو تو اس کی حاجت کو پورا کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ دیگر حقوق العباد کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان ایک بات یاد رکھیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، متولیان اور ٹرسٹیان کی جاگیر اور پراپرٹی نہیں ہے، اور جس کا گھر ہوتا ہے قانون بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ چونکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتے ہیں، اسی لیے قانون بھی اللہ کا ہی چلنا چاہیے۔ مسجدیں ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں ہوا کرتی تھی، اور وہ سارے کام مسجدوں میں ہونے چاہیے جو نبی اور صحابہ کے دور میں ہوا کرتے تھے، ورنہ سارے متولیان اور سارے ٹرسٹیان مسجد خدا کی بارگاہ میں مجرم کی طرح پیش کیے جائیں گے۔ حضور کے زمانے میں مسجد پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی۔ آج کل جو کام ودھان سبھا، راجیہ سبھا میں ہوتے ہیں، اس سے بھی اہم امور مسجدوں میں کھجور کی چھالوں سے بنی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر طے کیے جاتے تھے۔ ساری دنیا کے بادشاہوں کی قسمت کے فیصلے مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے اموی اور عباسی خلفاء امامت اور خطابت کا اہتمام خود فرماتے تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں مشورے کی جگہ مسجد ہی ہوا کرتی تھی۔ درس و تدریس کا مرکز اور عسکری یعنی فوج کا ساز و سامان تیار کرنے کا سرچشمہ، یہاں تک کہ لشکر روانہ کرنے کا سینٹر بھی مسجدیں ہی ہوا کرتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ مسجد میں ہی گزارا۔ باہر سے آنے والے سفیروں سے ملاقات بھی مسجد میں ہی فرماتے تھے، اور اسلام کے ابتدائی دور میں مساجد میں ہی جنگوں کی منصوبہ بندی کی جاتی تھی، اور اسی دور میں مساجد علم کا مرکز اور قوت کا سرچشمہ ہوا کرتی تھی۔ اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے فقہا، محدثین، مفسرین اپنی نشستیں مسجد میں لگایا کرتے تھے۔ یہ مسجدیں مسافروں کے لیے آرام گاہ بھی ہوا کرتی تھی۔ فیملی میٹر اور خاندانی مسائل بھی مسجد میں ہی سلجھائے جاتے تھے۔ یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے دور میں مسجدیں صرف مسجدیں ہی نہیں بلکہ ایک کمیونٹی سینٹر ہوا کرتی تھی۔ ایک زمانے تک مسجدیں اپنا کردار بخوبی انجام دیتی رہی، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا رہا، دشمنوں نے مسجدوں کی اہمیت اور مرکزیت کو سمجھ کر اس کے خلاف گہری اور خفیہ سازشیں شروع کر دی، تاکہ مسجدوں کے کردار کو ختم یا کم سے کم کمزور ضرور کر دیا جائے۔ پچھلے کئی صدیوں سے یہ مسجدیں معاشرے میں اپنی مرکزی حیثیت سے محروم رکھی جا رہی ہے۔ بلا شبہ مسلمانوں کے پاس وسائل کی ریل پیل
पहले के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन मस्जिदों का कोई पुरसान हाल नहीं है। और बहुत ज्यादा अफसोस की बात यह है कि मुसलमान अल्लाह के घरों को मुसलसल नजरअंदाज करते चले आ रहे हैं और इन मस्जिदों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर की जैसी हैसियत दिलवाने के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की। मस्जिदों के किरदार खत्म करने में और मस्जिद के मकाम और मकसद को गला दबाने में हमने भी दुश्मनों का पूरा पूरा साथ दिया, बल्कि अब तक दे रहे हैं। सिर्फ 5 वक्तों की नमाजों के लिए मस्जिदों को मखसूस कर दिया गया। नमाज के 15 मिनट या आधे घंटे के बाद मस्जिदों को ताले लगाए जा रहे हैं। आजकल मस्जिदों में इमामों के तकर्रुर के वक्त उसकी इल्मी सलाहियत, उसके हिफ्ज, उसकी क़िरात, उसकी तजवीद, उसकी वाज़ो तकरीर कैसी है, यह देखने के बजाय यह देखा जाता है कि किस मसलक का पैरोकार है, किस मौक़िफ़ का प्रचारक है और साथ साथ मुतवल्लियान और ट्रस्टियान की कितनी फर्माबरदारी वो कर सकता है। इस बेतुकी सलाहियत की बुनियाद पर इमामों का तकर्रुर किया जाता है। हालात हाजरा पर उम्मत को कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई करना तो इमामों के लिए जैसा हराम होकर रह गया है। आज मुसलमानों की एक कसीर तादाद मस्जिदों में दुनियावी उमूर के ताल्लुक से गुफ्तगू करना भी हराम समझती है। अगर किसी मस्जिद में कोई इमाम हिम्मत करके मौजूदा हालात पर या हालात हाजरा पर या सियासत पर कुरान और हदीस की रोशनी में अगर रहनुमाई कर दे तो अगली नमाज तक उसका बिस्तरा गोल कर दिया जाता है। ऐसे जिम्मेदारों को और ऐसे मुतवल्लियों को अल्लामा इकबाल की इस शेर पर गौर करना चाहिए कि जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। हमने उम्मत के संजीदा मसाइल पर गौर व खौस करने के लिए और दीनी जलसों के लिए और कॉन्फ्रेंसों के लिए बड़े बड़े हॉल और ऑडिटोरियम बुक किए, लेकिन जमात, जुमा और ईदैन को हम भूल गए। हमने फाइनेंशियल रिसोर्सेस के तौर पर मालियाती फंड कायम तो कर दिए, लेकिन इस्लामी ज़कात के निज़ाम को मुनज़्ज़म करना हम भूल गए। हमने बड़े बड़े जलसे और इज्तिमात के लिए अपनी सलाहियत, अपना माल, अपना वक्त तो लगाया, लेकिन ऐन उसी मकसद के लिए शरीयत ने खुतबे जुमा का हुक्म दिया, उसको हमने नज़रअंदाज कर दिया। मेरे भाइयों, याद रखो, मदरसों में सिर्फ 2 या 3% लोग जाते हैं, लेकिन मस्जिदों में 98% आबादी हाजिरी देती है। अगर हम चाहे तो सिर्फ जुमा में ही दीनी, इस्लाही, सियासी, समाजी पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमें किसी मीडिया की जरूरत नहीं है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, ना प्रिंट मीडिया की। अगर सिर्फ जुमा के खुतबात को मुनज़्ज़म कर दिया जाए और जुमा के खुतबात में बेहतरीन मुकर्रिरीन और वाइज़ीन और अइम्मा को बोलने की आज़ादी दी जाए कि वो उम्मत को कुरान और हदीस की रोशनी में बताएं कि दौरे हाजिर के फितनों से कैसे निपटा जाए, तो इंशाअल्लाह इससे वो काम होगा जो जलसों और कॉन्फ्रेंसों और मेन स्ट्रीम मीडिया से भी नहीं हो सकता। चूंकि मुसलमानों की तकरीबन 98% आबादी मसाजिद से जुड़ी हुई होती है, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उकला, डिग्री होल्डर, बिजनेसमैन, पढ़े लिखे, जाहिल, गवार, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल होते हैं। हमें अपनी आवाज मसाजिद के जरिए पूरे समाज में आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। हमारा अलमिया यह है कि अक्सर मसाजिद में कम इल्म और कम तजुर्बेकार इमामों का तकर्रुर होता है, जो सिर्फ मुतवल्लियान के इशारों पर लब्बैक कहने वाले होते हैं। फिर ऐसे इमाम इल्म और तजुर्बों की कमी की बिना पर मुस्बत रोल के बजाय मनफी किरदार अदा करते हैं। वो इस्लाह के बजाय इंतशार और बिगाड़ पैदा करते हैं और इख्तिलाफी मसाइल को हवा देकर नफरत का बीज बोते हैं। यही वजह है कि मुस्लिम मुआशरा दीन से बेजार होता जा रहा है। इमामों की तकरीरें गैर मेयारी और मौजू से हटकर होने लगी है। वही घिसे बिटे बयानात जिनको लोग 1000 बार सुन चुके हैं, उन्हीं को बिठा बिठा कर बार बार वही बयानात सुनाए जाते हैं, जिनका आज के हालात से कोई लेना देना नहीं है। बाहर के हालात कुछ और है और मेंबर और मेहराब की सदाएं कुछ और होती है। इसलिए आजकल लोग जुमा के दिन भी घड़ी लगाकर ऐन जमात के वक्त मस्जिदों में आने लगे हैं। जो लोग जल्दी भी आ जाते हैं, वो बयान सुनने के बजाय जिक्र अस्कार में और कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ हो जाते हैं। माफ करना, इसके जिम्मेदार और मुजरिम मसाजिद के वो जिम्मेदार हैं, वो मुतवल्लियान हैं
जो मस्जिदों के जिम्मेदार और मुतवल्ली तो बन गए, लेकिन मस्जिदों की हकीकत से वो बिल्कुल वाकिफ नहीं है। उनको तो सिर्फ मस्जिदें सजाने और संवारने की फिक्र ज्यादा लगी हुई है। कीमती मार्बल और कीमती संगे मरमर, बेशबहा गालीचे, झूमर, यहां तक कि तहारत खानों और बैतुल खला में भी मार्बल लगाने की उनको फिक्र रहती है, जिसमें वो उम्मत के लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, जो कि फजूल खर्ची और इसराफ में उनका शुमार होता है, जिनका हिसाब कल क़यामत के दिन उन्हें देना होगा। मेरे भाइयों, फिरकावारियत से उम्मत मुस्लिमा का शिराजा बिखर चुका है, इत्तेहाद पारा पारा है, मजहबी गरोहबंदी और मसलक परस्ती ने तबाही मचा दी है। जब से मुसलमान तकसीम हुए हैं, हर फिरके की अलग मस्जिदें हैं, जहां मखसूस सोच और फिक्र का प्रचार किया जाता है। दूसरों के खिलाफ मेंबर और महराब से जहर उगला जाता है, किसी को काफिर तो किसी को वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता है। इसी तअस्सुब के नतीजे में मुस्लिम माशरा बेचैनी और बर्बादी का शिकार हो चुका है। ये उम्मत वाहिदा अब मुख्तलिफ फिरकों में, मुख्तलिफ गिरोहों में और ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। मुस्लिम माशरा बिगाड़, इंतशार, खलफशार, गुमराह कुन अफकार और अखलाक रजीला का भयानक नमूना पेश कर रहा है। अखलाकी जराइम, बेहयाई और फहाशी का तूफान बदतमीजी है कि थमने का नाम नहीं लेता। मुआशरे में बेदीनी, बदअमनी, बेसुकूनी, वहशत और दहशत आम है। कत्ल व गारतगिरी और डाका जनी, रहजनी और बददयानती, बदअहदी, रिश्वत, धोखाधड़ी, मिलावट, झूठ, फरेब का चलन है। मेरे भाइयों, इन मफासिद और गंदगियों को खत्म करने के लिए ऐसे इक़दामात करने की जरूरत है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के जमाने में किए गए थे, जिसकी बदौलत माशरा अमन, सुकून, मोहब्बत और आश्ती और खुशहाली का ऐसा बेमिसाल नमूना वो दौर बन गया था कि यमन की दारुल खिलाफा सनआ से एक अकेली औरत हज के लिए तमाम ज़ेब व ज़ीनत और जेवरात पहनकर चली तो मक्का तक उसकी तरफ निगाह उठाकर देखने की हिम्मत किसी ने नहीं की। वो माशरा इस कदर मुस्लिह और तरबियत याफ्ता और खुशहाल बन गया था कि लोग ज़कात लेकर निकलते थे तो वसूल करने वाला मुस्तहिक कोई नहीं मिलता था। मेरी तमाम ट्रस्टियान मस्जिद और जिम्मेदारान मस्जिद से हाथ जोड़कर अपील है कि सबसे ज़रूरी और अहम इक़दाम इन मस्जिदों की इमामत और खिताबत के लिए इंतहाई तालीम याफ्ता उलमा का तयन किया जाए, जो उम्मत तक कुरान और हदीस की असल दावत पहुंचाने और उम्मत की सही रहनुमाई करने की उनके अंदर सलाहियत हो और उन्हें पूरी आज़ादी दी जाए। इन उलमा की तनख्वाहें मजबूत और काफ़ी होनी चाहिए ताकि हमारे उलमा न सिर्फ पूरी यकसुई के साथ दीन का काम कर सके, बल्कि आला तालीम याफ्ता नौजवानों को भी दीन की तालीम की तरफ और दीन की दावत की तरफ रागिब कर सके। मेरे जहन में कुछ काम हैं जो मस्जिदों के जरिए होने चाहिए, जो आजकल बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले जुमा के खुतबे में जानदार और मुअस्सिर तकरीर होनी चाहिए। दीन की बुनियादी अकायद, इबादत, मामलात, अखलाकियात और हालात हाजरा पर तरतीब से खुतबात और तकरीर की जाए। तकरीर का अंदाज आम फहम, जामे और दिलचस्प होना चाहिए। नंबर 2, किसी नमाज या दिन का तयन करके कुरान और हदीस का दर्स होना चाहिए। नंबर 3, मस्जिदों में कुरान मजीद, नाजरा और हिफ्ज की क्लासें हर उम्र के लोगों के लिए होनी चाहिए और औरतों के लिए भी मुनासिब जगह और पर्दे के नज्म के साथ तालीमी इंतजाम होना चाहिए। नंबर 4, गाहें गाहें किसी बड़े आलिम दीन को बुलाकर मुख्तलिफ इस्लाही मौज़ूआत पर बयान कराने चाहिए। नंबर 5, मस्जिद के जानिब से मुख्तलिफ तहरीरी, तकरीरी, इस्लामी इनामी मुकाबले बच्चों और नौजवानों के लिए कराए जाएं ताकि उनका रुझान मसाजिद की तरफ हो। नंबर 6, हर मस्जिद में दीनी किताबों की लाइब्रेरी होनी चाहिए, जहां हर जबान में दीनी किताबें दस्तयाब हो। उसमें हर एक को इजाजत होनी चाहिए कि वो आकर दीन इस्लाम का मुताला करे। नंबर 7, हर मस्जिद के इमाम और मुतवल्लियान के पास पूरे महल्ले में रहने वालों की तफसील मोबाइल नंबरात के साथ होनी चाहिए और उनकी माली हालात से भी वाकफियत होनी चाहिए। महल्ले में कितने मालदार और कितने गरीब रहते हैं उनका पता होना चाहिए ताकि किसी नागहानी मुसीबत के वक्त एक दूसरे से रब्त किया जा सके। नंबर 8, हर मस्जिद में बैतुल माल का निज़ाम होना चाहिए, जहां से
معاشی طور پر پریشان حال نوجوانوں کو چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے لیے امداد یا قرض دیا جائے، جس سے ہمارے نوجوان سودی چکروں سے بچ سکے، اور اسی بیت المال سے ملت کے غریب بیٹیوں کے نکاحوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ یہ 8 باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ان مساجد کو معاشرے میں کھویا ہوا مقام واپس دلوانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ انہی مساجد اور مدارس کی بقا میں اسلام کی بقا ہے۔ اگر ان اسلام کے قلعوں کو صحیح طریقے سے استعمال میں لایا جائے تو یہ معاشرے کی اصلاح اور اسلام کی سربلندی میں بہترین کردار ادا کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ہم سب کو آغاز کرنا پڑے گا اور اپنے محلے کی مسجد کو اور معاشرے میں فعال بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ کیوں نہ ہم اپنے معاشرے میں مساجد کو فعال بنانے کی تحریک میں بارش کا پہلا قطرہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔